dear learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Today we are here to start our new and very first session of class 5th science. Okay, that is about how plants grow, right? The students, as we all know, that plants are the living creatures around us. They are present everywhere around us. Okay, they are green in color. They are the only living creatures which can prepare their own food. Now, how? Let's start the chapter and discuss the various properties of plants and the processes which occurs in the plants. Okay, let's start it. Heat. First of all, they have given you the introduction, right? See. So as we have read in earlier classes that plants are the primary producers on earth, it means that they are the only living things that can produce their own food. What they're saying is, जैसे कि हम सभी ने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है कि प्लांट्स जो है वो अर्थ के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मीन्स दे आर द ओनली लिविंग क्रिएचर्स, अकेले ऐसे लिविंग क्रिएचर्स है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का जिसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन गैस ऑल्सो. ओके, एंड सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू ब्रीथ इन, टू लिव एंड टू सर्वाइव, राइट. अलॉन्ग विद दैट, ऑक्सीजन के साथ साथ plants हमें other numerous useful materials also. What they have given you that most plants grow from seeds, while some from roots, stems and leaves also. See, ज्यादातर सभी plants अपनी seeds के थ्रू grow करते हैं, but कुछ ऐसे भी plants हैं जो other body parts के थ्रू grow कर सकते हैं, like from the roots, stems and leaves. A new plant grows from its seed. New plant हमेशा अपनी seed के थ्रू grow करता है. A new rose plant can grow from its stem. एक new rose plant अपनी stem के थ्रू grow करता है. A new bryophyllum plant एक new grow करने के लिए आप उसकी leaves के थ्रू grow कर सकते हैं. जो parent plant होता है, parent plant की leaves के थ्रू एक new bryophyllum plant can be grown. And a new carrot plant, एक new carrot plant जो है अपनी roots के थ्रू grow करता है. That means what? That हर एक प्लांट की जो ग्रोइंग थिंग है यानी कि ग्रोइंग पार्ट है वो डिफरेंट होता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट यानी कि ज्यादा प्लांट्स सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, बट अदरवाइज जो बाकी प्लांट्स है दे ग्रो फ्रॉम ईदर रूट्स, लीव्स और द स्टेम. ओके, नाउ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. अब कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अ सीड. हम सबसे पहले सीड के थ्रू कैसे प्लांट्स को ग्रो करेंगे. So most plants begin life as seeds. Plants form seeds inside flowers. In some flowering plants, the seeds are surrounded by a fruit. What they say, ज्यादातर plants की जो life start होती है वो as a seed start होती है. Okay, plants seeds बनाते हैं flowers के अंदर. And कुछ ऐसे flowering plants होते हैं जिनमें seeds के surrounding में fruit होता है. That means seeds fruit के अंदर present होती है. Seed coat क्या है? Seed coat एक hard outer covering है seed की, जो बेबी प्लांट यानी कि सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है उसे प्रोटेक्ट करती है. वाटर सीप्स इनटू द सीड, एंड अब उस सीड के अंदर जो वाटर जाता है किसके थ्रू जाता है? उसी सीड कोट में एक होल होता है छोटा सा, देयर इज अ टिनी होल इन दैट सीड कोट, जिसके थ्रू वाटर सीड के अंदर सीड करता है एंड सीड ग्रो करना स्टार्ट. सीड नीड, एक सीड को एयर, वाटर, राइट टेम्परेचर, फर्टाइल सॉइल एंड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट. ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एक सीड की जो उसे चाहिए डेवलप करने के लिए एंड एज अ बेबी प्लांट और सीडलिंग के फॉर्म में ग्रो करने के लिए. These are some basic essential requirements for the seed. That is air, water, right temperature, fertile soil, and right amount of sunlight also. Okay. Next topic which we have is that is germination. See, the development of a seed into a seedling, that is a baby plant, is called germination. What is baby plant को seedling कहा जाता है? First of all, you must know that. Okay. And ये जो development process है जहाँ पे एक seedling यानी कि baby plant में develop होती है, इस process को we call germination process.
अब ये जर्मिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले सीड को, एक हेल्दी फ्रेश सीड को क्या सॉइल के अंदर सो किया जाता है, एंड जब सॉइल के अंदर सीड को प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मनेस, दैट इज फ्रॉम द सनलाइट, ये सब मिलता है, तब वो सीड जर्मिनेट होती है टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. अब प्लांट के जर्मिनेशन की क्या क्या स्टेजेस है? तो सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सबसे पहले वो जो सीड है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एंड एज अ रिजल्ट सीड कोट बिकम सॉफ्ट. सीड कोट क्या हो जाता है? फिर सॉफ्ट हो जाता है. इट ब्रेक्स अप. उसके बाद तो सीड कोट ब्रेक होता है, एंड जो बेबी रूट दैट इज रेडिकल वो उससे बाहर निकलना शुरू कर. इट डेवलप्स, रेडिकल डेवलप होता है एंड डीप इनटू द सॉइल ग्रो करना स्टार्ट करता है. एंड देन उसके बाद बेबी शूट व्हिच इज आल्सो नोन एज प्लूम्यूल. ओके, ये बेबी शूट या प्लूम्यूल जो है वो एमर्ज होता है, जो आगे चल के डेवलप होगा एंड इट विल ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट. The seedling uses the food stored in cotyledons for its growth. तो उसके बाद जो वो सीडलिंग है वो क्या करती है? उस फूड को यूज करती है जो कि कॉटिलेडन्स के अंदर स्टोर्ड है, राइट, अपनी ग्रोथ के. कॉटिलेडन्स क्या है? कॉटिलेडन्स हमारे बेबी प्लांट की लीव्स होती हैं जो अपने लिए फूड स्टोर करती है फॉर द अर्ली स्टेजेस. देन ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इसके बाद शूट ग्रो करती है, एंड टिनी foliage leaves इसमें अपीयर होना स्टार्ट होती है. When the foliage leaves grow, the foliage leaves properly grow करेंगी, उसके बाद वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है by the process of photosynthesis. ओके, तो इसके बाद न्यू प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है जो आगे चल के फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं, एंड अगेन अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, ऑल दी सीड्स, जितने भी सीड्स है उनको जब ये सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये जर्मिनेट करती हैं एंड न्यू प्लांट में ग्रो करती है. इन दिस वे, इस तरीके से जो साइकिल है प्लांट की बर्थ एंड ग्रोथ, इट कंटिन्यूज ऑन द अर्थ. ओके, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सीड्स. सीड्स का कैसे डिस्पर्जन होता है? तो ऑफन द सीड गेट्स स्कैटर्ड दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ न्यू. ज्यादातर जो सीड्स है वो क्या होती है? पहले स्कैटर होती है, फैल जाती है, जिससे न्यू प्लांट्स की ग्रोथ होती है. एंड द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड. ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए सीड्स जो है मदर प्लांट से दूर जाके स्कैटर होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ सीड. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज बाय द सीड गेट डिस्पर्ज्ड. अब हम डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू सीड्स डिस्पर्स होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? बाय विंड. दैट मींस विंड क्या है? विंड एक एजेंट है जो सीड डिस्पर्जन में हेल्पफुल होता है. सी, the wind carries away many small seeds that are very light and have wing-like structures. Okay, and the seed just gets scattered. But they're saying कि विंड यानी कि जो हवा है वो भी क्या करती है? उन सारी छोटी छोटी सीड्स को स्कैटर कर सकती है जो काफी लाइट वेट होती है, और उनके में क्या विंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. इनको आसानी से विंड के थ्रू स्कैटर किया जा सकता है. एग्जाम्पल, डेंडेलियन एंड साइकोमोर. ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो लाइट होते हैं एंड इनमें एक्सटेंशंस होते हैं जो एज अ पैराशूट और विंग्स की तरह एक्ट करते हैं, दैट दे कैन इजीली कैच द विंड. एंड जो लाइट एंड हेयरी कॉटन सीड्स हैं वो किसके थ्रू? विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट इज बाय वाटर. द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स की सीड्स हैं जैसे कि कोकोनट एंड लोटस. इन प्लांट्स की सीड्स जो है इजीली ड्रॉप होती है इनटू और नियर एनी वाटर बॉडी. ओके, एंड द फाइब्रस कवरिंग. इन सीड्स की जो फाइब्रस कवरिंग्स है ये इन्हें हेल्प करती है टू फ्लो अवे विद वाटर. ठीक है, वाटर के साथ फ्लोट करने के लिए, एंड देन ये डिफरेंट प्लेस पे जाके. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? एनिमल्स. सम सीड्स, कुछ ऐसी सीड्स है जैसे कि कोकल बर्ड which have sticky और prickly seed coat. इनकी जो सीड कोट्स है वो थोड़ी स्टिकी एंड prickly होती है, so that के easily किसी भी एनिमल बॉडी के फर पर स्टिक हो जाए. आफ्टर दैट इन सीड्स को एनिमल्स के थ्रू कैरी अवे किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, एंड इस तरीके से ये कहीं भी जाके ग्राउंड पे ड्रॉप हो जाती है अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट.
right? Then seeds are also dispersed by birds and other animals. Birds and other animals भी seeds को disperse करने में help करते हैं. How? यानी कि वो क्या करते हैं, वो fruits को खाते हैं, राइट? एंड फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो वो उनकी बॉडी से पास होती है एंड कहीं ना कहीं वो फिर कहाँ जाके, काफी दूर जाके स्प्रेड हो जाती है, जब बर्ड्स क्या करती है, इन फ्रूट्स को खा लेती है। वहां पे मतलब बर्ड्स ने इन फ्रूट्स को खाया है, उससे काफी दूर जाके वो अपनी ड्रॉपिंग्स के थ्रू इन सीड्स को डिस्पर्स कर देती है। नेक्स्ट इज बाय एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स जो है अपनी सीड्स को एक्सप्लोजन के थ्रू भी स्कैटर करते हैं। ओके, पॉड राइपर्स, एक्चुअल में कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिनके बाहर पॉड होता है, एंड जब ये पॉड पूरी तरीके से राइप हो जाता है तो फिर ये ओपन होता है एक बर्स्ट के साथ, एक फोर्स के साथ, एंड उस फोर्स के थ्रू से, उस फोर्स की वजह से जितनी भी सीड्स है उसके अंदर, ओके, वो शूट हो जाती है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, पॉपी प्लांट, पी, बीन सीड्स, ये सभी एक्सप्लोजन के थ्रू ही डिस्पर्स होते हैं। These were the different agents of seed dispersion. Now next we have the topic that is growing plants from roots. कैसे roots के through plants grow होते हैं? तो as I told you that few plants of their kind can grow from the roots of the parent plants. कुछ ऐसे plants हैं, okay, जो अपने जैसे new plants को parent plant की roots के through grow कर सकते हैं. Example radish, carrot, beetroot, turnip. Okay, all these plants can be grown through their roots. Next we have growing plants from stems. Stems के through भी हम कुछ new plants को grow कर सकते हैं. Okay, few plants of their kind can be grown from the stems also of the parent plant. Example potato, onion, rose, hibiscus, etc. Then growing plants from leaves. Leaves के through भी new plants grow किए जा सकते हैं. For example, the leaves of the bryophyllum plant. Bryophyllum plant की leaves में क्या होता है, उनके margin area पे क्या कुछ छोटे छोटे शूट बर्ड्स डेवलप होते हैं, एंड ये जो बर्ड्स हैं फ्रॉम द रूट्स, ये क्या एज द बेस एक्ट करते हैं। जब ये प्लांटलेस किसी मॉइस्ट सॉइल पे ड्रॉप होते हैं तो ये वहां से न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। ओके, जेड एंड रेक्स बेगोनिया, ये भी कुछ अदर प्लांट्स हैं जो इजीली ग्रो किए जा सकते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। ओके, now the plants which can grow from leaves through a process called vegetative propagation. तो सारे plants जो leaves के थ्रू ग्रो किए जाते हैं, ओके, वो इस प्रोसेस को कहा जाता है vegetative propagation. Now next topic which we have is that is of agriculture. What is agriculture? The large number of plants which are grown in a particular region during a particular season to get food or fiber from them and to provide industrial raw material. These are called crops. What they say? The large number of plants, एक बड़े number of plants, एक बड़े scale पर जब plants को grow किया जाता है एक particular region में और एक particular season के अंदर, okay, so that हमें उनसे food और fiber मिल सके या हमें industrial raw material मिल सके, इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्रीकल्चर, एंड ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, दैट दे आर नोन एज क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है क्रॉप्स को ग्रो करने की एंड क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने की। ओके, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ राइपेंड क्रॉप्स। एंड हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब आपके जो क्रॉप्स है प्रॉपरली राइप हो जाते हैं, उन्हें कट करना, उन्हें गैदर करना, द प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एग्रीकल्चर हमें फूड एंड डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। ओके, एक एग्जांपल आपको गिवन है यहाँ पे रॉ मटेरियल का विच वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, दैट इज शुगर केन। ओके, शुगर केन एक रॉ मटेरियल है विच वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर ओनली, एंड फिर शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में टू मेक शुगर। ओके, नाउ क्रॉप्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। क्रॉप्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। ओके, बट हम यहाँ पे केवल दो को ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स स्टूडेंट्स, दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल मंथ में ग्रो किए जाने वाले क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स कहा जाता है। ये विंटर सीजन में सो किए जाते हैं एंड स्प्रिंग सीजन में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल wheat, barley, legumes, these are some rabi crops. Then next we have kharif crops. Kharif crops are grown from June to October.
जून टू अक्टूबर ग्रो किए जाने वाले क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है. एग्जाम्पल राइस, मेज एंड ज्वार. ये आर सम खारिफ क्रॉप्स. इन हिली एरियाज, स्टूडेंट्स हिली एरियाज में फार्मर्स जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बट हाउ? बाय कटिंग स्टेप्स इन द माउंटेन साइड. माउंटेन साइड में स्टेप्स को कट करके इस तरीके से फार्मिंग करी जाती है हिली एरियाज में, विच इज नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग. ओके, इन द हिली एरियाज ऑफ दार्जिलिंग एंड असम. ओके, असम एंड दार्जिलिंग के जो हिली एरियाज है वहाँ पे फार्मर्स टी प्लांट्स को ग्रो करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज स्टेप फार्मिंग और terrace farming. See, they have shown you some stages of agriculture also. Agriculture की क्या-क्या stages है? Number 1, the field is plowed and the soil is prepared. सबसे पहले field की plowing करी जाती है and soil prepare करी जाती है. After that, manure is added. फिर manure को add करते हैं. Then seeds are sown. फिर seeds को sow किया जाता है properly. Then the field is irrigated or water is provided to the crops. इसके बाद field को irrigate किया जाता है, यानी कि वहाँ जो क्रॉप्स है उनको पानी प्रोवाइड किया जाता है. पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है ओवर द क्रॉप्स. एंड देन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जब क्रॉप्स प्रॉपरली राइप हो जाते हैं देन उनको हार्वेस्ट किया जाता है. एंड आफ्टर दैट स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स को प्रॉपरली स्टोर किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज हाउ द agriculture process goes on. Okay, that's all for the chapter. It's completed over here. I hope you must have understood about the different methods of plants growth, how they can be grown, what are the different methods. We have also discussed about agriculture and the different types of crops. I hope you must have understood them all. Let's meet in our next session. Till then, keep going well and thanks to everybody.